ایکوکارڈیگرافی اور ETT مشین خراب ہونے سے مریض پریشان۔ روزانہ 100 سے زائد دل کے مریض تشخیص کے لیے دیگر اسپتالوں میں جانے پر مجبور ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، کبھی ایک خرابی تو کبھی دوسری۔ الائڈ ہسپتال فیصل آباد میں مسائل ختم نہ ہو سکے۔ امراض قلب میں ایکوکارڈیگرافی اور ETT مشین خراب ہونے سے مریض پریشان۔ روزانہ 100 سے زائد دل کے مریض تشخیص کے لیے دیگر ہسپتال میں منتقل کیے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے بات کرتے اپنے نمائندہ عزادار حسین سے۔ جی عزادار، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جانب سے الائڈ اسپتال جو کہ فیصل آباد ریجن کا سب سے بڑا اسپتال ہے، یہاں پہ امراض قلب کا وارڈ بنایا گیا ہے اور ایسے دل کے مریض جو کہ ہارٹ اٹیک کے بعد الائڈ اسپتال کا رخ کرتے ہیں اور یہاں پہ انہیں داخل کیا جاتا ہے، تو یہاں پہ تشخیص کے لیے جو بنیادی ٹیسٹ ہے ایکوکارڈیوگرافی مشین وہ یہاں پہ خراب پڑی ہے۔ اس کے علاوہ ETT مشین جو ہے وہ خراب ہے، جس کے سبب جو مریض یہاں پہ آ رہے ہیں تو انہیں فیصل آباد انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی اسپتال تشخیص کے لیے بھیجا جا رہا ہے یا پھر پرائیویٹ ہسپتالوں میں بھیجا جا رہا ہے۔ اور ایسے میں مریضوں کے تیماردار کا یہ کہنا ہے کہ جب ہارٹ اٹیک مریض کو ہوا، دل کی تکلیف ہوئی تو وہ اسے لے کے الائڈ اسپتال پہنچے ہیں، مگر یہاں پہ سہولت نہ ہونے کے سبب مریض کو جو ہے خواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے ساتھ تیماردار موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کیا کہیں گے۔ جی بھائی، کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل والی وارڈ جو ہے ہاسپٹل لائٹ ہاسپٹل کی، وہاں سے میں عرض کر رہا ہوں، میرا ماموں جی یہاں پہ داخل ہے، تحصیل سمندری سے لایا ہوں، تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ مشین ان کی خراب ہے۔ ہمیں کہتے ہیں کہ FAC سے جا کر تو کروا کر لاؤ، تو پلیز ہماری ریکویسٹ ہے لائٹ ہاسپٹل انتظامیہ کے آگے اور حکومت کے آگے کہ تاکہ برائے مہربانی یہ مشین جو ہے ان کو مشین جو ہے یہ سے ٹھیک کروایا جائے تاکہ دیگر ہسپتالوں کا جو ہے وہ رخ نہ کرنا پڑے۔ جی آپ کو کون داخل ہے؟ جی میری والدہ داخل ہے یہاں پر، اور انہوں نے وہ لکھ کے دیا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ وہ FIC سے جا کر کروا کے لے کے آئیں۔ اگر ہم وہاں جائیں، اپنی والدہ کو لے کے میں وہاں جاؤں پھر واپس یہاں لے کے آؤں، تو اس سے بہتر ہے میں وہیں جا کے کروا لوں۔ یہ تو نہیں چاہیے نا کہ یہ یہاں پر یہ سہولت ایکو کے ٹیسٹ کی میسر کریں۔ بالکل، اگر یہاں پہ ایکوکارڈک کی ٹیسٹ کی سہولت نہیں ہے تو مریضوں کے تیماردار کا یہ کہنا ہے کہ انہیں خوار نہ کیا جائے، تو یہ وارڈ جو ہے یہاں پہ مریضوں کو داخل نہ کیا جائے اور مریضوں کو جو ہے وہ فیصل آباد انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی اسپتال ہی بھجوایا جائے، کیونکہ یہاں پہ جب لایا جاتا ہے اور مریض کی حالت جو سیریس ہوتی ہے تو بروقت علاج نہ ملنے کی صورت میں جو ہے مریض کو کسی قسم کا جو خمیازہ ہے جان کا وہ بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ دوسری جانب فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی کے جو وائس چانسلر ہیں پروفیسر ہینا عائشہ، جو کہ ایکٹنگ وائس چانسلر بھی ہیں، ان سے ہماری بات ہوئی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ روزانہ 100 سے زائد جو مریض ہیں ان کی یہاں پہ ایکوکارڈیوگرافی کی جائی تھی، مگر مریضوں کا برڈن زیادہ ہونے کے باعث، رش زیادہ ہونے کے باعث جو مشین تھی یہ خراب ہو گئی ہے۔ 6 لاکھ روپے اس کی جو ہے ریپیئرنگ کے اوپر لگیں گے اور فنڈ جو ہے وہ متعلقہ ڈپارٹمنٹ کو فراہم کر دیا گیا ہے اور انجینئر جو ہے وہ اس کی مرمتی جو کام ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں۔ امید یہی ہے کہ جلد سے جلد جو ہے یہ مشین ٹھیک کروا دی جائے گی۔ جی جلد سے جلد یہ مشین ٹھیک کروائی جائے۔ بہت شکریہ عزادار حسین۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ کبھی ایک خرابی تو کبھی دوسری۔ الائڈ ہسپتال فیصل آباد میں مسائل جنم نہ ہو سکے، اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ قائم مقام وائس چانسلر میڈیکل یونیورسٹی ہینا عائشہ کا کیا کہنا ہے، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ اس سلسلے میں بالکل میں انفارم ہوں اور اس پہ کام ہو رہا ہے۔ ایکوکارڈیوگرافی مشین جو ہے جس کی بہت سخت ضرورت، اور ایک دن میں 100 تک کالز آ جاتی ہیں CCU کو، اور اس کی اب یہ جو ٹھیک ہونے کی ہے درستگی کی آخری مراحل میں اس کے پیسے بھی اپروو ہو گئے، انجینئرز نے اس کا فالٹ بھی ڈیٹیکٹ کر لیا اور انشاءاللہ 1-2 دن کے اندر وہ اپنا کام شروع کر دے گی۔ اور ہمارے جو پروفیسر نئی اسلم ہیں، ڈاکٹر طارق ہیں، جو CCU میں تعینات ہیں، وہ کام کرنا شروع کر دیں۔ قائم مقام VC کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی۔ آگے بڑھیں گے، خبر یہ کہ ٹوبہ ڈسٹرکٹ اسپتال کے ڈائلسس وارڈ میں عملہ نہ ہونے کی خبر پر ایکشن لیا گیا۔ گزشتہ روز ڈائلسس وارڈ میں عملے کی نااہلی کے باعث جاں بحق ہونے والے شخص کے معاملے پر CEO ہیلتھ نے 2 ڈاکٹر سمیت 4 افراد کو معطل کیا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، ٹوبہ ڈسٹرکٹ ہسپتال کے ڈائلسس وارڈ میں عملہ نہ ہونے کی خبر پر ایکشن۔ گزشتہ روز ڈائلسس وارڈ میں عملے کی نااہلی کے باعث جاں بحق ہونے والے شخص کے معاملے پر CEO ہیلتھ نے 2 ڈاکٹر سمیت 4 افراد کو معطل کر دیا۔ اس حوالے سے بات کرتے اپنے نمائندہ شاہد محمود سے۔ جی شاہد، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، اگر بات کی جائے گزشتہ روز ٹوبہ ٹیکسن کے DHQ ہاسپٹل میں ڈاکٹرز کی نااہلی کے باعث جو ہے ایک شخص جو ہے ڈائلسس وارڈ میں جاوید نامی شخص جو ہے انتقال کر گیا تھا، جس کے بعد جو ہے
उर्सा की जानिब से एहतजाज किया गया था कि हमें इंसाफ फराहम किया जाए। सीओ हेल्थ डॉक्टर जफर इकबाल और MS वहां पर पहुंचे थे, उनकी जानिब से यकीन दहानी करवाई गई थी कि आपको इंसाफ फराहम किया जाएगा और सीओ हेल्थ की जानिब से नोटिस लेते हुए जो है फौरी तौर पर इस पे इनकी इंक्वायरी करने का हुक्म दिया था। अब जो है पेशरफ्त नजर आई है कि 4 जो अमला है वहां का डायलिसिस का, जिसमें 2 डॉक्टर और 2 नर्सेज शामिल है, उनको सस्पेंड कर दिया गया, जिसमें डॉक्टर इमरान खान और उसके साथ साथ डॉक्टर साकिब शामिल है और 2 नर्सेज जिसमें ज़ैबुन्निसा और सोफिया अकरम शामिल है। चारों को सस्पेंड करके इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया है। DHO डॉक्टर काशिफ बाजवा की सरबराही में जो है इंक्वायरी कमेटी जो है तश्कील दी गई, उनको हिदायत की गई है कि जल्द से जल्द इनकी इंक्वायरी करके इनकी रिपोर्ट जो है वो फराहम की जाए ताकि इनके खिलाफ बाकायदा जो है बाकी कार्रवाई भी की जा सके। इस मौके पर सीओ हेल्थ डॉक्टर जफर इकबाल का कहना था कि किसी को ये इजाज़त नहीं है कि जो लोगों को इंसाफ ना फराहम कर सके, लोगों को जो है ज़रूरी चीज़ें ना दे सके, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ जिस तरह से सिटी 41 ने फुटेज जो है वो बनाई थी कि वहाँ पे बच्चे जो है डायलिसिस वार्ड का जो है वहाँ पे मशीनों को इस्तेमाल कर रहे थे। जब उनसे बात की तो उनका कहना था कि हमें डॉक्टर्स की जानिब से जो है नर्सेज की जानिब से कहा गया है कि आप खुद इस्तेमाल करें, हम नहीं आएंगे। जिसके बाद जो है अब सीओ हेल्थ की जानिब से बाकायदा तौर पर तहकीक का आगाज़ कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया शाहिद महमूद हमें अपडेट करने के लिए। जिला झंग के 31 बुनियादी मराकज़ सेहत 4 दीवारी से महरूम। PP 124 में 11 मराकज़ सेहत की 4 दीवारें ना हो सकी। PP 130 की 6 और 125 और 128 के 4 मराकज़ शामिल हैं। ख़वातीन अमला खौफ का शिकार हैं। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मुबशिर से नकवी है। मुबशिर, पूरे अगर जिले की बात की जाए 31 बुनियादी मराकज़ सेहत हैं जहां पर 4 दीवारें नहीं है और वहां पर मरीजों को भी परेशानी का सामना है, खास तौर पर जो मरीजों के साथ उनके लवाहिकीन आते हैं, क्या वजह है? देखिए, हुकूमत पंजाब महकमा सेहत की जानिब से दावे किए जाते हैं कि मराकज़ सेहत और अस्पतालों में इलाज मुआवजे की बेहतर सहूलियात फराहम की जा रही हैं, लेकिन झंग में सूरत हाल इससे बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाई दे रही है। जिला झंग के 31 बुनियादी मराकज़ सेहत ऐसे हैं जहाँ पर 4 दीवारी मौजूद नहीं है और इस 4 दीवारी की तामीर के हवाले से महकमा सेहत झंग ने हुकूमत पंजाब को अदद बार चिट्ठियाँ भी लिखी, लेकिन वो चिट्ठियाँ रद्दी की टोकरी की नज़र हो चुकी हैं और ये वजह है कि इन मराकज़ सेहत में 4 दीवारी की तामीर आज तक मुकम्मल नहीं हो सकी है। सबसे ज्यादा जो 4 दीवारियां जिन मराकज़ सेहत में नहीं है वो PP 124 है, जिसमें 11 मराकज़ सेहत में 4 दीवारी मौजूद नहीं है। PP 125 में 4, 28 में 6, 29 में 4 मराकज़ सेहत ऐसे हैं जहां पर 4 दीवारी मौजूद नहीं है, जबकि PP 130 में 6 मराकज़ सेहत जो है वो 4 दीवारी से महरूम दिखाई देते हैं। यहाँ पर हमारी जो अमला था उनसे बात हुई तो उनका कहना था कि मजबूरी तौर पर 250 से ज़ायद ख़वातीन अमला जो है वो इन मराकज़ सेहत में काम करता है। रात के औकात में काम करने वाली ख़वातीन अमले को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। खौफ के साए तले वो काम करती हैं क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी इंतजामात ना होने के बराबर है। दद्दित बुनियादी मराकज़ सेहत ऐसे ही हैं जहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड तैनात नहीं हो सके हैं। ख़वातीन का ये कहना है कि घर तक बुनियादी मराकज़ सेहत तक पहुँचना उनके लिए मुश्किल मरला है और रात तक इन बुनियादी मराकज़ सेहत में ड्यूटी करना उनके लिए किसी खतरे से कम नहीं है। तमाम अभी तक इन बुनियादी मराकज़ सेहत में 4 दीवारी की तामीर मुकम्मल नहीं हो सकी है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो आने वाले मरीज़ हैं उनका ये कहना है कि उनको भी खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अमले का, डॉक्टरों का ये कहना था कि जिन मराकज़ सेहत में 4 दीवारें नहीं है वहाँ पर आवारा कुत्ते जो है वो इन इमारत के अंदर दाखिल होते हैं और उसके साथ साथ दीगर जानवर जो है वो अक्सर औकात इन मराकज़ सेहत में दाखिल होते हैं। लेकिन हुकूमत पंजाब ने इस अहम मसले को संजीदगी से लेने की बजाय बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया है और यहाँ पर काम करने वाले अमले के साथ साथ आने वाले मरीजों की मुश्किलात में भी इजाफा हो रहा है। सीओ हेल्थ डॉक्टर महबूब कुरैशी से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि बिलाशुबा 31 बुनियादी मराकज़ सेहत 4 दीवारी से महरूम है। इस हवाले से महकमा सेहत प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर को चिट्ठी भिजवाई है। जैसे ये फंड्स आएंगे इन तमाम तर बुनियादी मराकज़ सेहत की 4 दीवारी मुकम्मल की जाएगी। जी मुबशिर से नकवी, आपने सारी सूरत हाल से मुतालिक अपडेट किया, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद के बाद चिन्योट का रुख करेंगे। चिन्योट से खबर यह कि चिराग तले अंधेरा, फंड्स की कमी कहें या फिर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया की बेहिसी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हाल खस्ताहाली का शिकार हो गया। म्यूनिसिपल हॉल में तमाम सरकारी महकमों की तकरीबात, सेमिनार और इजलास मुनक्किद होते हैं, लेकिन हॉल की खस्ताहाली को दूर करने के लिए कोई इकदाम नहीं किए जा सके। इस हवाले से बात करते हैं अपने नुमाइंदा अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, अपडेट कीजिएगा।
मौजूद हूँ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस में और यहाँ पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हाल जो है वो इंतजामिया की गफलत की बीट चढ़ चुका है और ये हाल अरसद रात से खस्ताहाली के मनाजिर पेश कर रहा है। जब आपको दिखा भी सके तो ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हाल है जहाँ पर ज़िला इंतजामिया की जानिब से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जामिया की जानिब से मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद तो यहाँ पर सरकारी तौर पर किया जाता है, लेकिन इस हाल की खस्ताहाली को दूर नहीं किया जाता। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बिल बोर्ड्स लगाए गए थे वो जो है वो खस्ताहाल हो चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो इसका दीवारें हैं वो टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं, छतों को दरारें पड़ चुकी हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से ज़िला इंतजामिया की जानिब से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से जो है इस हाल की खस्ताहाली को दूर नहीं किया जा रहा। इस तरफ दिखा सके तो यहाँ पर कचरे के ढेर हैं, ये हाल है इसमें तमाम तर जो सरकारी तकरीबात होती हैं, लेकिन इस हाल की खस्ताहाली को दूर नहीं किया जाता। आप देख सकते हैं कि कैसे जो है ये टूट फूट का शिकार हो चुका है। इस वजह से जो सरकारी तौर पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से मुख्तलिफ तकरीबात होती हैं, इवेंट्स होते हैं, सेमिनार होते हैं और इजलास का इनेकाद भी यहाँ पर किया जाता है। वजीरों मुशीरों की जानिब से तमाम तर जो बड़ी तकरीबात होती हैं वो इस हाल में होती हैं, लेकिन हुकूमत की ज़िला इंतजामिया की और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया की यह मुबैना गफलत है कि इस म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हाल की खस्ताहाली को दूर नहीं किया जाता है। तो इस हवाले से जो शहरी हैं उनका ये मुतालबा है कि इस म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हाल की तज़ीर व आराइश की जाए, इसकी खस्ताहाली को दूर किया जाए ताकि मुख्तलिफ जो सरकारी महकमों की तकरीबात होती हैं और इवेंट्स होते हैं उनको बेहतर तरीके से जो है वो सरअंजाम दिया जा सके, तरीके से सरअंजाम दिया जा सके। बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर तामीर किया गया फैमिली वेटिंग हॉल बस नाम का। वेटिंग हॉल में मुसाफिरों के बैठने के लिए खातिर ख्वाह इंतजामात मौजूद ही नहीं। मुसाफिरों ने वेटिंग हॉल में बेहतर इंतजामात बनाने का मुतालिबा कर दिया। आपको अपडेट कर रहे हैं फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर तामीर किया गया फैमिली वेटिंग हॉल बस नाम का। इसी पर बात करेंगे अवैस अली से। जी अवैस कहिए। जी बिल्कुल, फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर बनाया गया फैमिलीज़ वेटिंग हॉल जो है वो बस नाम का है। यहाँ पर वेटिंग हॉल में ना तो लाइट्स की सहूलत मौजूद है, ना बैठने के लिए जो है वो बेंचेस मौजूद हैं। मुसाफिर खड़े होकर घंटों ट्रेनों का इंतज़ार करने पर मजबूर है। महकमा रेलवे की जानिब से बिलखुसूस फैसलाबाद रेलवे इंतजामिया की जानिब से यह दावा किया जाता है कि लाखों रुपये जो है वो खर्च किए गए हैं इस फैमिलीज़ वेटिंग हॉल पर, मगर यहाँ पर सहूलियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। हमारे साथ कुछ मुसाफिर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस वाले से उनका क्या कहना है। अच्छा, आप हमें बताइएगा कि यहाँ पर जो सहूलियात हैं फैमिलीज़ वेटिंग हॉल में वो आपको मैसर हैं? सर, जो फैमिली वेटिंग हॉल की सूरत हाल है आपके सामने है। इसमें सहूलियात का फुकदान है, जगह की कमी है। आप खुद देख सकते हैं, यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जितनी भी फैमिलीज़ है वो आउटसाइड द बैठी हैं और अंदर बिल्कुल जगह बिल्कुल कंजस्टेड टाइप की है, थोड़ी सी है और बैठने के लिए बिल्कुल कोई जगह नहीं है। और सहूलियात का आपके सामने है, ना पानी वगैरह है, उसके भी बहुत सारे मसाइल हैं यहाँ पे। और ट्रेन के औकातकार भी आप जानते हैं कि बहुत सारी लेट हो चुकी हैं। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर फैमिलीज़ वेटिंग हॉल में जो है आप वो बुनियादी सहूलियात मैसर ही नहीं, ना तो बैठने के लिए जगह मौजूद है, ना लाइट्स मौजूद हैं। महकमा रेलवे की जानिब से जो फैमिलीज़ वेटिंग हॉल फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर आप बनाया गया है वो बस नाम का है और महकमा रेलवे की जानिब से उसमें जो है वो मुसाफिरों को किसी किस्म की सहूलियत फराहम नहीं की जा रही। फैमिलीज़ के साथ प्लेटफार्म पर घंटों जो है वो मुसाफिरों को ठीक है, आपने अपडेट किया अवैस, आपका शुक्रिया। टोबा टेक्सिंग का रुख करेंगे। खबर यह है कि टोबा टेक्सिंग में आरटीए सेक्रेटरी अक्सा गफूर का धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों समेत इजाफी किराया वसूल करने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। 35,000 से ज्यादा जुर्माने किए गए, जबकि 4 गाड़ियों को बंद कर दिया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं टोबा टेक्सिंग में आरटी सेक्रेटरी अक्सा गफूर का धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों समेत इजाफी किराया वसूल करने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। इस हवाले से बात करते अपने नुमाइंदा शाहिद महमूद से। जी शाहिद, अपडेट कीजिएगा। ये आरटी सेक्रेटरी अक्सा गफूर जो है अब मैदान में आ चुकी है। हुकूमत की जानिब से जो है स्मोक के पेश नजर जो है इकदाम किए जा रहे हैं, उसी के नजर जो है आज अक्सा गफूर की जानिब से टोबा टेक्सिंग कमालिया रोड पर नाका लगाकर धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए 4 गाड़ियों को बंद कर दिया गया, जबकि मुतअद्दिद गाड़ियों को 35,000 से ज्यादा जुर्माने भी किए गए। उनको वार्निंग दी गई कि आइंदा जो है गाड़ियों को अगर मरम्मत ना किया गया तो आपकी गाड़ियां भी बंद कर दी जाएंगी। तो इस मौका पर अक्सा गफूर का कहना था कि अब जो है रोजाना की बुनियाद पर इसी तरह से मुख्तलिफ मुकामात पर जो है नाके लगाकर कार्रवाइयां की जाएंगी ताकि गाड़ियों को बेहतर किया जा सके, क्योंकि गाड़ियां जो है धुआं छोड़ रही हैं जिसकी वजह से स्मोक का जो है वो खदशा पैदा हो सकता है। और इसके अलावा जो है जायद किराया वसूल करने वाले गाड़ियों के खिलाफ भी क्रैकडाउन किया जा रहा है ताकि मुसाफिरों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात मुहैया की जा सकें। इस मौका पर आरटी सेक्रेटरी समेत
मुतअद्दिद जो है ट्रैफिक पुलिस के जवान भी वहां पे उनके हमरा थे, जहाँ पे कार्रवाई की गई और जुर्माने किए जा रहे हैं। अब फैसला किया गया है कि आरटी सेक्रेटरी ट्रैफिक पुलिस के हमरा खजाना की बुनियाद पर जहाँ पे लारी अड्डा समेत मुख्तलिफ बहुत शुक्रिया शाहिद महमूद हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद के मकीनों के लिए एक खबर है कि फैसलाबादी एक और टैक्स के लिए हो जाए तैयार। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की यूजर फीस लगाने की तैयारी। एक्साइज और फेस्को से घरों की फहरिस्तें हासिल करके फी मरला फीस आयद होगी। कमर्शियल और घरेलू सार्फिन के लिए अलग अलग फीस रखी जाएगी। FWMC ने माली खसारा कम करने के लिए सफाई अखराजात शहरियों के खाते में डाल दिए। आपको अपडेट कर रहे हैं, फैसलाबाद एक और टैक्स के लिए हो जाए तैयार। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की यूजर फीस लगाने की तैयारी। एक्साइज और फेस्को से घरों की फहरिस्तें हासिल करके फी मरला फीस आयद होगी। इसी हवाले से बात करते अपने नुमाइंदा अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, अपडेट कीजिएगा। अब सफाई मुफ्त में नहीं होगी बल्कि इसके लिए पैसे अदा करने पड़ेंगे। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी यहां पर महकमा एक्साइज और फेस्को की मदद से फरिश्ते मुरतब कर रही हैं, जिसके बाद उन्हें सफाई का जो टैक्स है वो लगाया जाएगा। यूज़र फीस का नाम दिया गया और उसका मकसद ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो अरबों रुपया सालाना सफाई पर खर्च होता है, जिसमें मुलाजमिन की तनख्वाहें दी जाती हैं, मशीनरी खरीदी जाती है, दूसरे तमाम अखराजात होते हैं, तो ये अब लोगों के खाते में डाले जाएंगे। लोगों को सफाई की सहूलत मुफ्त में मुयसर नहीं होगी। शहरियों को जहाँ पर वो रह रहे हैं वहाँ पर उनका बिल कितना आता है, इस हिसाब से जो यूज़र फीस आयद की जाएगी। कमर्शियल फीस अलग होगी, इसके अलावा जो डोमेस्टिक फीस है वो अलग होगी। और इसका यहाँ पर जो महकमे की जानब से कहा जा रहा है कि यहाँ पर मंजूरी पंजाब हुकूमत की जानब से बाज़ाब्ता तौर पर दे दी गई है इस सिलसिले में कि यहाँ पर आप फरिश्ते मुरतब की जाएँ। फिर उसके बाद जो टैक्स कलेक्शन कैसे करनी है उसके बारे में पंजाब हुकूमत बताएगी। क्या ये वासा के बिल में लग के आएगा, फेस्को या सुई गैस के बिल में लग के आएगा, या फिर जो फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानब से एक बाकायदा तौर पर अपना डिपार्टमेंट अलग से एक विंग बनाया जाएगा जहाँ पर लोगों से बिल कलेक्ट किए जाएंगे और हर माह लोगों को ये बिल सफाई का देना होगा। और जैसा कि वेस्टर्न ममालिक में किया जाता है, जिसकी मिसालें दी जा रही हैं, तो यहाँ पर इनका मकसद ये है कि यहाँ पर एक जो भी आम शहरी 50 रुपये या 100 रुपये मरला के हिसाब से जब उस पर फीस आयद होगी तो उसके लिए ये कोई बड़ा मसला नहीं होगा, लेकिन कंपनी के लिए एक बड़ा रेवेन्यू इकट्ठा करना मुमकिन हो सकेगा। और इसमें पहले साल में जो लिस्टें मुरतब की जा रही हैं उसके मुताबिक उन्हें जो फीस आयद की जाएगी दूसरे साल में, तीसरे साल में वो फीसें बढ़ा दी जाएंगी और आहिस्ता आहिस्ता जो माली खसारा सफाई पर लग रहा है वो कम करते हुए एक टाइम आएगा कि जब तमाम खसारा लोगों के सर डाल दिया जाएगा और फिर लोगों को जो अपनी जो भी सफाई होती है उस पर जितने भी अखराजात आते हैं वो अपने पल्ले से बर्दाश्त करने होंगे। इस सिलसिले में यहाँ पर जो अराकीन असम्बली है उन्हें भी लूप में लिया जा रहा है और पंजाब हुकूमत की जानब से मंजूरी भी दी जा चुकी है। डिप्टी कमिश्नर जो कि यहाँ पर अब चेयरमैन भी है इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के, उनकी जानब से भी मंजूरी दी जा चुकी है। और जो किस तरह से टैक्स लगाना है इस सिलसिले में हुकूमत पंजाब। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद वासा लगभग 56 करोड़ रुपए का नादाहिंदा फेस्को ने वसूली के लिए नोटिस जारी कर दिया। वासा ने सरकार से उम्मीदें वाबस्ता कर ली। वासा ने हुकूमत से 3 अरब रुपए से जायद के फंड्स मांग लिए। आपको अपडेट कर रहे हैं, फैसलाबाद वासा लगभग 56 करोड़ रुपए का नादाहिंदा फेस्को ने वसूली के लिए नोटिस जारी कर दिया। वासा ने सरकार से उम्मीदें वाबस्ता कर ली। वासा ने हुकूमत से 3 अरब रुपए से जायद के फंड्स मांग लिए। फेस्को की 7 दिन की मोहलत फंड्स न मिले तो शहर भर के ट्यूबवेल्स बंद होने का अंदेशा। इसी पर बात करेंगे रमजान मिर्जा से। जय रमजान, अपडेट कीजिए। पिछले 5 माह में तकरीबन फेस्को की 55 करोड़ रुपए से जायद की बिजली जो है वो खर्च की है, जिसको जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर पंपिंग स्टेशन और ट्यूबवेल्स में इस्तेमाल किया गया। और फिल वक्त जो है वो वासा की जानिब से इसकी अदायगी यकीनी नहीं बनाई जा रही, क्योंकि वासा को ना सिर्फ आमदन में खसारे का सामना है तो इसके साथ साथ जो बिजली के बिलों में तेज़ी से इजाफा हुआ है वो भी वासा के लिए दर्द सर बना हुआ है। गुज़िश्ता हफ्ते फेस्को की जानिब से फैसलाबाद हेड ऑफिस में जो वासा का ऑफिस मौजूद है वहां पर उसका कनेक्शन काटा गया, डिस्पोजल स्टेशंस के कनेक्शंस जो हैं वो काटे गए। एक बार फिर जो है वो हतमी नोटिस तो जारी कर दिया गया है, लेकिन फिल वक्त वासा की जानिब से रकम की अदायगी के लिए हुकूमत पंजाब को तकरीबन 3 अरब 1 करोड़ रुपए से जायद की रकम का जो है वो एक मुरासला भिजवाया गया है, जिस पर ऊपर हुकूमत की जानिब से गौर खोज जारी है। लेकिन दूसरी जानब अगर देखा जाए तो जमीनी हकायक ये है कि हुकूमत की जेब में पैसे ना होने की बार बार बात सुनी जा रही है। इस सूरत हाल में हुकूमत पंजाब के लिए 3 अरब रुपए की खतीर रमजान, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका।
इसी पर बात करेंगे। डिप्टी डायरेक्टर इलेक्ट्रिक सेल वासा सलमान अहमद हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान साहब, इस हवाले से क्या कहेंगे? अच्छा, जो बिल है ये अराउंड अबाउट जो लेटेस्ट फिगर है इसमें ये 580 मिलियन को टच कर गई है। तो हमने इस सिलसिले में गवर्नमेंट को लेटर्स भी लिखा हुआ है और इन्फॉर्म भी उनको किया हुआ है कि हमें वो फंड की कुछ ज़रूरत है। तो 3 अरब से ज़ायद की हमने उनसे फंड डिमांड की हुई है, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की हुई है। तो उम्मीद है कि गवर्नमेंट हमें जल्द से जल्द ये फंड ट्रांसफर कर देगी और हम ये जल्द से जल्द रिस्पॉन्स देगी गवर्नमेंट। शुक्रिया, आपने अपडेट इस हवाले से अपना मौक़िफ़ सामने रखा। सलमान अहमद बता रहे थे कि गवर्नमेंट को ख़त लिखे गए ताकि हमें जल्द रिस्पॉन्स दिया जाए और जो ये अहम मामला है इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। पंजाब एसोसिएशन ऑफ कंप्यूटर टीचर्स का गैर तदरीसी ड्यूटीज के खिलाफ एहतजाज किया गया। स्कूल शुमारी के लिए होने वाले ट्रेनिंग में शिरकत से पहले तमाम कंप्यूटर टीचर्स ने स्याह पट्टियां बांधकर और स्याह मास्क पहनकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। इसी हवाले से बात करते अपने नुमाइंदा जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, अपडेट कीजिएगा। जी, पंजाब हुकूमत की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि असातिज़ा से गैर तदरीसी ड्यूटियां नहीं ली जाएंगी। बिलखसूस IT टीचर के हवाले से ये कहा गया था कि उनको सिर्फ कंप्यूटर लैब्स में और क्लासेस में कंप्यूटर पढ़ाने पर मामूर किया जाए, लेकिन ज़िले हुकाम जो हैं वो इसकी वायलेशन कर रहे हैं। इसी हवाले से आज स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम के डाटा के हवाले से ट्रेनिंग का आगाज़ कायद-ए-आज़म अकेडमी में होने जा रहा है। तो इस हवाले से तमाम कंप्यूटर टीचर्स जो हैं वो एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं ताकि हुकूमत की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है गैर तदरीसी ड्यूटियां ना लगाने के हवाले से उस पर अमल दरामद हो सके। इस हवाले से आज तमाम जो कंप्यूटर टीचर्स हैं वो इस ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट तो करेंगे, लेकिन स्याह पट्टियां बांधकर और काले मास्क पहनकर। इस हवाले से क्या कहना है, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं असातिज़ा के, कंप्यूटर टीचर्स एसोसिएशन के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ओहदेदार उनके मौजूद हैं काशिफ भट्ट, उनसे हम बात करते हैं। बताइएगा कि आज से आपकी ट्रेनिंग है लेकिन आपने एहतजाज के तौर पर स्याह पट्टियां भी बांधी हैं, मास्क भी है, मुतालबा क्या है हुकूमत से? बिस्मिल्लाह, हमारा मुतालबा ये है कि हमारे जो कंप्यूटर टीचर हैं इनको गैर तदरीसी जो काम है उसमें उलझाया हुआ है। जब सेक्रेटरी स्कूल ने क्लियर कट नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है कि किसी भी IT टीचर से आप डेटा एंट्री का काम और बाकी गैर तदरीसी काम नहीं ले सकते, तो क्यों बार बार जो है इस लेटर को जो है इसके हवा में उड़ाया जा रहा है। बात यह है कि हम सिस्टम के साथ चल रहे हैं, हम तावन भी करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप IT टीचर्स को जो परेशान करें। आज इस ट्रेनिंग में शामिल होने का मकसद ये था, ये हमारे भाई सारे आए हैं, हमने काली पट्टियाँ डाल के और मास्क डाल के एहतजाज करने का मकसद ये है कि हम सिस्टम के साथ चलेंगे। लेकिन अगर आप इस चीज़ को इम्पोज करने की कोशिश कर रहे हैं IT टीचर के ऊपर, तो इसको हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और ना ही हमारा काम है। अब देखें ना कि ये कोरोना की वजह से पहले ही सेशन जो है वो आधा रह गया है और टोटल हमारे पास डेज़ जो हैं वो 45 डेज़ हैं जिसमें हमने अपना कोर्स पूरा कवर करवाना है। तो मुझे बताएं कि 45 डेज़ में कैसे IT टीचर जो है वो अपना कोर्स को कवर करवाएगा। और दूसरी बात, ये एक हफ़्ता पहले जो है इन्होंने डेंगू के हवाले से एक ऐप इंट्रोड्यूस करवाई है जिसमें तमाम टीचर जो हैं इसमें इन्वॉल्व कर दिए हैं, हमारे हेड जो है उसको इन्वॉल्व कर दिया है। अब एक टीचर के ज़िम्मे 35 से 40 तस्वीरें हैं जो उसने अपलोड करनी है। अब वो काम अभी ख़त्म नहीं हुआ, तो दूसरा इन्होंने अब ये सेंसिस का जो काम है ये शुरू करवा दिया है। ये 31 अक्टूबर तक हमने इसको कम्प्लीट करना है। अब अगर जो टीचर्स हैं वो सारे इन्हीं असाइनमेंट्स में मसरूफ़ रहेंगे कि वो पढ़ाएंगे कब। तो हमारा मुतालबा है कि ये बेजा जो आपने ये जो ऐप्स बनाई हैं, खुदारा इसका आप खात्मा करें और IT टीचर को जो है वो स्कूलों में पढ़ाने दें, क्योंकि हमारा मुतालबा है कि जो ऐप्स बनाई हैं उसका खात्मा करें। बहुत शुक्रिया जहांगीर अशरफ हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। जंग में सिटी 41 महकमा तालीम के मसाइल आला ऐवान तक पहुंचाने में कामयाब। महकमा स्कूल एजुकेशन की मंजूरी के बाद दर्जा चहारम की भर्तियों का कोटा बढ़ा दिया गया। जिले के स्कूलों में मजीद 80 सीटों पर तैनाती मुमकिन की जाएगी। इसी पर बात करेंगे अवैस खान से।
بالکل جنگ میں سٹی 41 محکمہ تعلیم کے مسائل اعلیٰ ایوانوں تک پہنچانے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ہدایت کی منظوری کے بعد درجہ چہارم کی بھرتیوں کے کوٹے میں اضافہ کر دیا گیا ہے، جس کے بعد محکمہ تعلیم کے مطابق جو ہے مزید جو ہے وہ 80 اسکولوں کے اندر جو ہے وہ بھرتی کا عمل مکمل کیا جائے گا۔ اس وجہ سے محکمہ تعلیم کو جو ہے گزشتہ جو ہے وہ طور پہ جو ہے محکمہ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے صرف 43 کے قریب جو ہے وہ خاکروبوں کی بھرتی کے جو ہے کمات جاری کیے گئے تھے، جو 1400 اسکولوں کے اندر جبکہ سیٹیں خالی پڑی ہوئی تھیں۔ اس کوٹا جو ہے یقینی حد تک انتہائی کم تھا، جس پر سٹی 41 کی جانب سے آواز اٹھائی گئی اور اس پر محکمہ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے کوٹے میں اضافے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں، جس پر محکمہ تعلیم کی جانب سے باقاعدہ طور پہ اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں۔ مجموعی طور پہ 130 اسکولوں کے اندر جو ہے وہ نئے خاکروبوں کی بھرتی کی جائے گی، درجہ چہارم کے لیے ملازمین کی بھرتی کی جائے گی۔ محکمہ تعلیم کے مطابق اسکولوں کے اندر جو ہے کمپیوٹر اور سائنس لیب کو مزید فعال کرنے کے لیے 10 اسکولوں کے اندر لیب اٹینڈنٹس کی بھی بھرتی کی جائے گی، جبکہ اس کے علاوہ 10 اسکولوں کے اندر جو ہے وہ نائب قاصد اور جو ہے وہ دیگر مالی جو ہے ان کی بھی بھرتیاں کا عمل مکمل کیا جائے گا۔ محکمہ تعلیم اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ آپ کا۔ سرکار کا اسپیشل ایجوکیشن سکولز کے کرونا ٹیسٹ کے لیے نوٹیفیکیشن جاری، ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ سٹاف اور خصوصی طلباء کے ٹیسٹ کیے جائیں گے۔ اسکول سربراہان نے SOPs پر مکمل عمل درآمد کی یقین دہانی کرا دی۔ اسی حوالے سے بات کرتے ہیں اپنی نمائندہ شاہدہ گمن سے۔ جی شاہدہ، اپڈیٹ کیجیے گا۔ حکومت کی جانب سے اسپیشل اسکولوں کے لیے جو ہے وہ مراسلہ جاری کر دیا گیا، جس میں یہ نوٹیفیکیشن لکھا گیا کہ جتنے بھی تمام سرکار اسپیشل ایجوکیشن کے اسکول ہیں ان میں ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ سٹاف جو ہے ان کے کرونا ٹیسٹ کیے جائیں گے، تاکہ ان کی سیمپلنگ لی جائے اور دیکھا جائے، ان کا رزلٹ چیک کیا جائے کہ کسی میں کرونا وائرس کی تصدیق تو نہیں ہوتی۔ اور اب جو ہے وہ محکمہ ہیلتھ کی ٹیمیں جو ہیں وہ مختلف اسکولوں میں جائیں گی اور ان کے جو ہے وہ ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ جتنے بھی اسٹاف ہیں ان کے کرونا ٹیسٹ لیے جائیں گے۔ اس کے بعد اسپیشل بچوں کے کرونا ٹیسٹ کیے جائیں گے، تاکہ ان بچوں کے جو ہے وہ کرونا ٹیسٹ کیا جا سکے اور ان کو اگر وہ نیگیٹو آتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ ان کی سرگرمیاں دوبارہ سے جاری رکھی جا سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان بچوں کے لیے خاص طور پر تمام تر SOPs کو بھی عمل درآمد کرنے کی ہدایت کی گئی ہے کہ بچوں کو ماسک پہنایا جائے، سینیٹائزر سے استعمال کیا جائے، اس کے ساتھ ساتھ جو گیٹ پر تھرمل گن رکھی جائے، اور اس کے علاوہ بسوں کے جس میں بچے آتے ہیں۔ صدیق اس حوالے سے شاہدہ گمن بتا رہی ہیں۔ شاہدہ، آپ نے اپڈیٹ کیا، آپ کا شکریہ۔ منشیات برآمدگی اور ڈکیتی کے مقدمات کی مثلیں غائب کرنے والے 3 تھانے داروں کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ تھانہ مامو کانجن میں شوکت علی سب انسپیکٹر کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ مقدمے میں فیاض حسین، ارشاد علی اور اسلم صابری کو نامزد کیا گیا۔ تینوں تھانے داروں کی گرفتاری یا معطلی ابھی تک عمل میں نہیں لائی گئی۔ اسی حوالے سے بات کرتے ہیں اپنے نمائندہ طیب مقبول سے۔ جی طیب، اپڈیٹ کیجیے گا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ منشیات برآمدگی اور ڈکیتی کے مقدمات کی مثلیں غائب کرنے والے 3 تھانے داروں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ اسی حوالے سے بات کرتے ہیں اپنے نمائندہ طیب مقبول سے۔ طیب، اگر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، یہ مقدمہ تھانہ مامو کانچن میں جو ہے وہ درج کیا گیا ہے۔ تھانہ مامو کانچن میں مختلف اوقات میں 30 انسپیکٹر جو ہے، جن میں اسلم صاحب، ارشاد حسین اور فیاض حسین شامل ہے، یہ مختلف اوقات میں وہاں پر تعینات رہے۔ وہاں پر منشیات برآمدگی اور جو ڈکیتی ہے ان کے مقدمات درج ہوئے، اس کی تفتیش ہے، ان کو مارک ہوئی تھی۔ انہوں نے تفتیش مکمل کر لی اور محرر سے روڈ سرٹیفکیٹ بھی لے لیا کہ چالان عدالت میں جمع کروایا جائے گا، مگر انہوں نے چالان عدالت میں جمع نہیں کروایا اور واپس مثل جو تھانہ میں جمع نہیں کروائی گئی، SHO اور افسران کی تلاش کی گئی، اس لیے نہ تو عدالت میں ملی، نہ ہی ٹریفک کو شکایت، نہ ہی تھانہ میں۔ سب انسپیکٹر پر یہ الزام لگایا گیا کہ انہوں نے مثلیں غائب کرتی ہیں، مثلیں کہیں بھی نہیں مل رہی، جس پر کام آپ نے اپڈیٹ کیا، شکریہ آپ کا۔ باوجود 4 پولیس اہلکاروں کے خلاف تھانہ سول لائن کی جانب سے مقدمہ درج نہ کرنے کا معاملہ خاتون عدالتی فیصلے پر عمل درآمد نہ ہونے پر پولیس کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی۔ اسی حوالے سے بات کرتے ہیں اپنے نمائندہ رانا زاہد سے۔ جی رانا زاہد، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، نگہبان پورہ کے رہائشی انیتا شہزادی کی جانب سے عدالت میں ایک درخواست دائر کی گئی 4 پولیس اہلکاروں کے خلاف مقدمے کے اندراج کے حوالے سے، جس پر ایڈیشنل سیشن جج ندیم انور چودھری کی جانب سے سماعت کی گئی۔ عدالت نے 4 پولیس اہلکاروں کے خلاف مقدمے کے اندراج کا حکم دے دیا، لیکن عدالتی احکامات کے باوجود پولیس اپنے پیٹی بھائیوں کے خلاف مقدمہ اندراج کرنے سے گریزاں ہیں۔ اگر ہم 4 پولیس اہلکاروں کی بات کریں جس میں تھانہ مومن کی سابقہ SHO فرا بطول، اس کے ساتھ ساتھ تھانہ منصورآباد کے سب انسپیکٹر علی عمران، ویجیلنس ٹیم کے 2 کانسٹیبلان شامل ہیں جن کے خلاف خاتون کی
की जानिब से मुकदमे के इंदराज के लिए दरखास्त दी गई, जिस पर अदालती अहकाम पर अमल न होने की वजह से एडिशनल सेशन जज नदीम अनवर चौधरी की जानिब से CPA फैसलाबाद को शोकॉज नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया गया है। अदालत की जानिब से यह अपने जो उनकी जानिब से हुक्मनामा जारी किया गया है उसमें यह कहा गया है कि अदालती हुक्म के बावजूद क्यों CPA फैसलाबाद की जानिब से अहकाम पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। इस हवाले से SSP इन्वेस्टिगेशन की जानिब से अदालत में एक रिपोर्ट जमा करवाई गई, जिस पर अदालत की जानिब से उस रिपोर्ट को जो है नहीं माना गया और CPA फैसलाबाद कैप्टन रिटायर्ड सुहेल चौधरी को शोकॉज नोटिस जारी करते हुए उनसे जवाब तलब किया गया है। बहुत शुक्रिया राना जाहिद नजीर हमें अपडेट करने के लिए। पुलिस अफसरान और प्रोसिक्यूशन ब्रांच के माबैन प्रोफेशनल हम आंगनी ना होने से मुल्जिमान को करार वाकई सजा दिलवाना ख्वाब बनने लगा। FIR के अंदराज के बाद प्रोसिक्यूशन ब्रांच ऑफिसर को बुलाकर तफ्तीश का रुख बताना समझा। इसी पर बात करेंगे तैयब मकबूल से। अजी बिल्कुल, महकमा पुलिस और प्रोसिक्यूशन ब्रांच के दरमियान पेशा वाराना हम मांगी ना होने की वजह से इंसाफ का हसूल दिन ब दिन ताख़ीर का शिकार होने लगा। प्रोसिक्यूशन ब्रांच की जानिब से तफ्तीशी अफसरान को FIR दर्ज होने के फौरी बाद बुलवा कर ये गाइड नहीं किया जाता कि तफ्तीश किन खतूत पर की जाए और चालान जमा करवाने से कबल कौन सी एविडेंस, कौन से शवाहद इस तफ्तीश मुकम्मल होने के दौरान जमा किया जाना ज़रूरी है। दूसरी जानब तफ्तीशी अफसरान का ये कहना था कि जब FIR दर्ज होती है एक FIR इलाका मजिस्ट्रेट को भिजवाई जाती है, जो कि हकीकत में प्रोसिक्यूशन ब्रांच के लिए भिजवाई जाती है। वहाँ पर मौजूद सरकारी वकील FIR देखने के बाद उसको नज़रअंदाज कर देता है। अगर उस हीनस क्राइम की FIR पे तफ्तीशी का पता करने के बाद उसको बुलवाकर हक़ाइक़ से आगाह किया जाए और तफ्तीशी खतूत के बारे में बताया जाए कि किन खतूत पर तफ्तीश किया जाना ज़रूरी है और चालान जमा करते वक्त कौन से शवाहद इस तफ्तीश के अंदर, इस मिसल के अंदर होने चाहिए। तफ्तीशी अपडेट करने के लिए शुक्रिया आपका। मरहबा मरहबा। माह रब्बिउल अव्वल का चांद नजर आते ही आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां शुरू कर दी। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ जुल्करनैन ताहिर मौजूद हैं। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां इस वक्त शुरू हो चुकी हैं। फैसलाबाद के बाज़ारों में मुख्तलिफ स्टॉल्स लग चुके हैं जिन पर मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं। सब रंग के जो झंडे हैं वो भी स्टॉल्स पर मौजूद हैं। गुंबद खदरा के रंग वाले झंडे शहरियों की ख़रीदारों की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। बच्चों के लिए यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें रखी गई हैं, जिनमें टोपियाँ हैं, बच्चियों के लिए स्कार्फ हैं और दीगर गलियाँ बाजार सजाने का सामान जो है वो भी स्टॉल्स पर रखा गया है। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि उनका क्या कहना है। मुझे बताइएगा, फैसलाबाद के शहरी जो हैं वो किस तरह से ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां करते हैं और किस तरह से गलियां बाजार सजाए जाते हैं? हम सब दोस्त मिलकर आए हैं इधर सामान खरीदने के लिए और इधर से सामान खरीद के ले जाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के लिए गलियां वगैरह सजाएंगे और नबी पाक का मिलाद मिलाएंगे। बिल्कुल, यहाँ पर इनका कहना है कि यहाँ पर दोस्त जो हैं वो मिलकर आते हैं, यहाँ से सामान खरीद कर ले जाते हैं और गलियां बाजार जो हैं उनको सजाया जाता है। मेरे साथ इस वक्त एक स्टॉल्स मालिक भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि वो इन सजावट की चीज़ों के हवाले से क्या कहते हैं और शहरी जो हैं वो किस तरह की चीज़ें ख़रीद रहे हैं और किस तरह का जो मजहबी अकीदत और जोश व वलवला जो होता है वो शहरी में होता है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा कि किस तरह की चीज़ें जो हैं वो स्टॉल्स पर रखी गई हैं और क्या कहते हैं कि फैसलाबाद के शहरी किस अकीदत व एहतराम के साथ तैयारियों में मसरूफ़ हैं जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? ये तो माशाल्लाह चांद निकलने से पहले ही अल्लाह के फजल व करम से सारी दुनिया शुरू हो जाती है कि इसकी करे हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी ख़ातमुन नबीयीन है, उनकी वलादत है। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये तो जोश खरोश से मनाते हैं हर साल। हम भी स्टॉल लगाते हैं हर साल अल्हम्दुलिल्लाह। हर साल नया जब दिन आता है ना, नया दिन और ज़्यादा जोश खरोश होता है। तो इसी हिसाब से आज पहला दिन है, आज पहले दिन ही माशाल्लाह गाहक शुरू हो गए हैं। तो अल्लाह पाक के फजल व करम से उम्मीद है कि ये जो लोग नहीं भी निकलते वो भी निकलेंगे इंशाल्लाह, वो इस वलादत को जोश खरोश के साथ मनाएंगे। इंतहाई जोश खरोश और मजहबी अकीदत के साथ जो है वो आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न मनाया जाता है। मेरे कैमरामैन इस वक्त बाजारों की रौनकें और बाजारों हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल्म वक्त इतना ही। देखते रहिए।